Okay, guys, we can start. Suryans, go ahead. Okay. So good evening, everyone. Good evening, Aryan. I would like to. I'm glad to tell you that today Aryan Khatyam is a seven times hackathon winner and is also represented India on an international hackathon at Google Gen AI Hackathon. So we will be talking about this session. This event is all about hackathons, basics about hackathons, and how you can win them. What is the roadmap to win a hackathon? At the last, we all want to win, and what is the roadmap by it? We will be discussing in this event. So starting, Aryan, how about you? आप मतलब यप कहाँ यप से? चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ सो हेलो एवरीवन आई एम आर्यन ख्यातम जैसे सूर्यवंश ने कहा सो आई एम समवन who loves building tech for startups and I've been to multiple hackathons and today I'll be talking on hackathons, how to get started, how to build at hackathons, somewhat about my journey and then about startups too. So Uh, at the end, if you have any questions or in the middle, also please ask. As it's a double-ended conversation, not only single man speaking up. So I'll be starting with my experience, how I got into hackathons, how I got into startups, how to build, how got into coding actually, and then I'll go into hackathons, then into startups. So this will be the general flow. I'll keep it short because India or South Africa का final चल रहा है and your guys still came up over here to attend this. So we'll keep it short. Uh, जितना जल्दी हो सकते रैप करता हूँ मैं जैसा ऐसे. So yeah, I'll be sharing my screen. So थोड़ा सा it gives you context. So yep, the screen is visible, right? Yes, it is visible. Yeah. So, little bit about myself. So, I'm someone who loves building tech for multiple startups. I've been working with a lot of startups since first year itself. Where I started off my journey where with this line, do what excites you basically. So, in first and second year onwards, uh, I started coding off projects straight away. Like there was one project which made me excited to get into coding right away. I'll just share the project itself over here. So it was something regarding how offline marketing can help you with analytics of that of digital marketing. Let's say if you advertise online on Instagram, Facebook, you get to know who is your advertiser, like how many people are looking at your ad and type of people watching your ad, how many people, the analytics. Like, the analytics is the main reason why people are advertising online. So that's digital marketing. So I wanted to solve a problem for offline marketing. Like in when you advertise offline, you don't get such data, which is number of viewers and audience demographics, engagement, etc. So what I did was I created a project in first year and second year made itself where uh, the same analytics which you get on of online will be equipped with the offline billboard marketing kind of thing. So what it was detecting number of people passing by your billboard, then age and gender of the people passing by, then it was also mentioning the attention span, okay, how long the person is looking at the ad, and as well as the emotions and vehicles count and stuff. So this is a project which got me into coding basically. So I didn't know anything. I jumped straight into Python because I know okay, to get face recognition done, to do the counting and all those things, there's a library called Computer Vision. So I started off with Computer Vision library, like how NumPy pandas are a library. Same similar way Computer Vision is a library in Python. So I just got started into the coding. What made me motivate was I wanted to build this project. So
whenever you do, no matter what field, whatever you do things which really excite you basically. आप जो भी कर रहे हो कोड के अलावा कोड भी या जो भी चीज लाइफ में करना चाहते हो वहां पे जो चीज आपको करने में मजा आता है वो करो आप, क्योंकि if it is a career then you spend almost 40 to 50 years pursuing it, right? You don't want to do something for 40 to 50 years which does not excite you. Like a lot of people get into coding thinking yaar acha package milega, but they don't really enjoy it. That's why India is producing a lot of mediocre engineers right now. So whatever you do, coding ho ya kuch bhi ho, do it with excitement. Do like inspiration लाओ ताकि आपको मजा आए, लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट हो, वरना आप एक दो साल करके बोर हो जाओगे। और जैसे एक वेब सीरीज देखते हो तो पहले के एक दो एपिसोड बोरिंग हो गए तो फिर आप छोड़ देते हो उसे। सो कीप डूइंग थिंग्स व्हिच एक्साइट्स यू। सो यू स्टार्टेड इट बाय, मतलब ऐसा स्टार्ट किया आपने कि आई वांट टू डू अ प्रोजेक्ट, सो आई स्टार्टेड learning some language, then I developed it further more, then I got to know about hackathons. Is it right? yeah, that's a brief overview. Like Okay. whatever I started off with the project कि मुझे project बनाना है, and I just got it and just went to YouTube and saw the tutorials of how to do computer vision starting from fundamentals, not straight into it. Because these are the projects which are not readily available on GitHub. You cannot just clone it and build it, right? Okay. So ये So सब कुछ scratch से। यस यस, सो मतलब मैनी ऑफ द यूजर्स, बहुत सारे लोगों का एक ये डाउट होता है कि व्हाट लैंग्वेजेस दे शुड प्रिपेयर। फॉर एग्जांपल नाग बायकर, he always he asked the question, should we learn any engineering language as a language for an engineer in the beginning, or what should we do? So मतलब उसके अंदर क्या रहता है फिर? So don't like I would recommend do a bottoms up approach, not a top down approach. Top down approach is you learn a language, you do a project and stuff like that. Do a bottoms up approach, like is think something of a project or a cool thing which you want to solve or any idea which a coding project can solve. Uh, then from that idea, think to build this project, what can I do? So for example, this whenever you run a Python, it runs on CMD, right? So then I wanted to convert this CMD application into website. So that's why I learned Flask. Ki, acha baba, I got to know ki if you want to convert Python CMD code, normal code, into a website, you will read Flask. So as ऐसे requirements आते जाएंगे तब जाके आप एक एक tech stack सीखो basically. So this is how I learned basically from the bottoms up approach. Pick a project and it will lead you to multiple things. Like I started with OpenCV, then went to Flask, then Django. Then I wanted to host the website. Acha, then went into cloud and all those things. So pick a No. project which interests you and start building it. And the requirements आते जाएंगे. So yep, that's the Uh, answer. Yeah. So, what Aryan, was your in the starting when you got to know about hackathon? First of all, how do you get to know about hackathon? What motivated you to get into hackathons? Yeah. So to get into hackathons, so I'll share my startup journey before the hackathon journey because I think the startup journey and the hackathon journey is very related to me. Because of the startup exposure is why I'm winning the hackathons, I feel. So I'll start with the startup journey, how I got into a startup. So it was in the second year when I got a random internship out of my college. It was of a company named Circles, which is in Mumbai. So I started off as a Python Django intern, and I used to post a lot of things online. So this was the article which was my first post. It was in March 31, 2023. Then a founder randomly approached me, telling me why not join our startup. So
It was rosyroti.work, which is basically connecting gig workers with the job seekers. Gig workers are someone who is a part-time job worker. Okay. So what my task was that is to optimize the whole business operation. So everything in that startup was working manually. Like the payments were done through Google Pay. Then they were using Excel sheets to store the data. They were using Google Forms to fetch the data from the vendors. And it was a very big form and very manual and hectic process. There was one person for payments, one person for data entry and stuff. So what I did was I optimized the whole business operations. Payment के लिए Razor Pay, a dashboard. अच्छा, these are the images also. I'll just share. So this is the gig worker dashboard. Then this is how the vendor will upload the form and the data. And these people were not so tech savvy. So you have to build tech in such a way that people use it. So the gig workers were drawing monthly salary out of the dashboard. It is still active, by the way. So here you can see how much, these are the real screenshots, by the way. In the project, you can see Angel One is there, and all the leads and how much is earning from that project. So everything. So from there, I learned how software impacts people. So this dashboard was enabling the gig worker to draw the monthly salary out of it. So it's a very really big thing, and it has generated more than 1 crore plus revenue till now. Like uh, from the Razor payment gateway, and then till now around 1,500 to 2,000 users were actively using this dashboard. So from there, I learned how to build tech which creates a lot of impact and a useful tech. So what happens is when you are at college, then your project remains a project itself. But when you go out in real world, then it is something when your code reaches in the hands of people. That is the most beautiful experience of a coder, to be honest. That is when you feel कि अच्छा मैं जो लिख रहा हूँ वो actually use हो रहा है. So this is where I learned how to build a scalable and a impactful software. Okay. So, okay. Okay, Then so yeah. how did you इसके बाद में how did you get to hackathons? मतलब basically you were at a startup, you were all being all set, then Yeah. suddenly what happened? You got into hackathons and you won everything. Yep. So getting into the hackathons. So this is my first. So in the second year itself, I was not attending a lot of hackathons, to be honest. I was in Pune. So a lot of hackathons were in Mumbai, by the way. So at that time, I never attended a hackathon because my internship was going on at that time. But at the start of second year, I guess in Jan or Feb, I Nah, udah deh attended my stop first ya. hackathon. Excuse me. You can Yeah. continue. So uh, when where was I? Yeah. So I attended my first hackathon in second year starting itself, which we didn't even know how to build a login page. We only were successful to build a Flask login page with, I guess, backend as PHP. We were using backend as PHP, and we didn't do anything. By the way, this was our first hackathon experience where we didn't know things to build. This was before startup, before my coding era, before I got serious about coding. So that, like, I just went into a hackathon where अच्छा पापा ऐसा होता है करके I got a exposure. Then then this was my like first hackathon this year 2024 ka, where we built everything. So yeah, coming to how did I get started with hackathon? So first of all, I attended a college level hackathon जहाँ पे हम बुरी तरह फेल हो गए, जहाँ पे लॉगिन पेज ही बन पाया. फिर जाके हम हैकेथॉन्स के बारे में समझे, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, बहुत सारी टीम्स आती हैं, काफी मजा आया. देन आई गॉट इनटू स्टार्टअप्स, वहाँ पे पूरा कोडिंग सीखा, कैसे टेक करना है पूरा, और कुछ हद तक अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए मैंने. फिर वहां से फिर ये ये ईयर इनफैक्ट तो ये इंटर्नशिप्स ये सब करते करते
ईयर आ गया था, सेकेंड ईयर खत्म होके थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा था, थर्ड ईयर मिड स्टार्ट हो रहा था शायद। फिर एक हैकाथॉन आया, क्रेसेंडो वाला, जो कि नेशनल लेवल हैकाथॉन था। तो यहाँ पे फिर हम एक्सपोजर मिल गया। दिस वाज आवर फर्स्ट ऑफलाइन हैकाथॉन। तो यहाँ पे हम गए। हाँ, तो जो भी नॉलेज था, जो भी यूआई, जो भी पिच करने का तरीका, जो भी एक्सपीरियंस हम इंटर्नशिप से, हम हैकाथॉन, पुराने हैकाथॉन से लिए थे, वो सारा कुछ इसमें हम डालते गए। जैसे कि ये वाले में हमने शायद रूरल लोगों के लिए हेल्थ केयर सिस्टम बनाया था, तो मोबाइल ऐप प्लस वेबसाइट दोनों बनाया था हम। तो यहाँ से हम फिर हैकाथॉन्स का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा we will get to about the hackathons. We are this is the audience is waiting for the hackathon stuff. ओके So ओके ओके, सो we will start with the hackathon. So what was your first exposure, like a professional hackathon when you started it? This one that you showed last. ठीक है, तो ऐसा what was the first exposure that you get? ठीक, what is the basic idea about the hackathon? क्या क्या होता है? What is the competition? What should they keep in mind मतलब before going to गॉट इट गॉट hackathon? इट। So yeah, first of all, what is a hackathon? If someone doesn't know it, it's a place where people come together, like engineer like us, and solve a problem in just 24 hours. And whoever is the top three team will win the prize money. Or if it's a company-based hackathon, then they'll get a internship or something out of it. And yeah, it's a quite adrenaline rush experience where people come together and build products in just 24 hours. So what happens is, first up is the problem statement. So I'll tell the winning mantras of an hackathon straight away, how I approach an hackathon. So Okay. first step is the problem statement. When you get selected into hackathon, first step they give is a problem statement. The problem statement can just show you, like, these are the various projects which are built only at hackathon. So one project was to make a news application to for the finance people. Then it was a AI video meeting platform, just like Google platform. And second was engineering placement platform for students. Then for farmers, inventory management system for uh, and then it's reverse retail with smart solution. So these are the multiple problem statement which you receive. It's just a textual form, like a document is there where problem statement is mentioned. So as soon as I get a problem statement, what do I do is I create a roadmap. Roadmap windows in such a, these are the very important features. You can see our images there over here. Roadmap is how the user journey will flow. The these are the important features which are mentioned in the problem statement, and these are the features which are going to build on top of it. So in the right, you can see all the features are mentioned over here, third, fourth, fifth, and then we create a roadmap kind of thing where all those things are connected, just like a user journey or user flow. So you get a problem statement, then one second, you get a problem statement, you list it down basically. Problem statement आ गया, then you list the features out कि जो important है और जो side features है, additional features. So this is the first step which I do, and this is done on pen and paper. You can do however you want. So this is the very initial. So where we do brainstorming, we don't directly jump into coding or stuff. We first understand what is the problem statement. सब लोग चारों टीम में से चारों अपना अपना आइडिया लगाते हैं, ये होना चाहिए, ये फीचर बनना चाहिए, इनोवेटिव फीचर्स क्या हो सकते हैं, एआई कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे डाल सकते हैं, मल्टीलिंगुअल रखना है क्या, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होएगा। तो ये काफी सारी चीजें और काफी सारे डिस्कशंस होते हैं। तो 24 हैकाथॉन में मैं पर्सनली तो 2 से 3 घंटा खाली ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, ना कि कोडिंग में लग जाता हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट कोडिंग करने लग जाते हैं, एकदम पहला लाइन कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं टाइम पर। बट नहीं,
सो एक अब्राहम लिंकन का कोट है कि sharpen your axe first, then cut down the tree. तो पहले अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो अच्छे से। कोई भी चीज़ हो, हैकेथॉन ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, पहले लिख लो, प्रॉब्लम को समझो कैसे सॉल्व करना है, ये सब ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर जाओ कोडिंग करने। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, डीएसएस का हो या कोई भी हैकेथॉन हो, कुछ भी हो, तो फर्स्ट थिंग इज ब्रेनस्टॉर्म करो, प्लान करो उसको अच्छे से। फिर सेकंड स्टेप हम तो उसके मतलब एक बार पहले देख लो ढंग से, पहले एकदम बैठ जाओ, करेक्ट उतावले मत हो ज्यादा जाके एकदम कोडिंग ही करनी है, पहले ढंग से करेक्ट समझ लो क्या है, उसके बाद में वी विल स्टार्ट डूइंग इट, वी विल मेक रोड मैप, वी विल ट्राई टू गिव अ स्पेशल टच ऑफ आवर्स, ऐसा करेक्ट करके वी विल स्टार्ट। देन द करेक्ट सेकंड स्टेप इज कोडिंग आई गेस। second step is yeah, like you can allot the टास्क। लाइक अगर मैं बैकएंड कर रहा हूँ तो आप मुझे बैकएंड के काम अलॉट कर दोगे। कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसे बोलेंगे यार वेबसाइट का यूआई, मोबाइल का यूआई बना दो। और कोई मोबाइल डेवलपर है तो वो तो मोबाइल में लग जाएगा। अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाना है तो एक एमएल का बंदा वो कर रहा है। सो यू डिवाइड द टास्क बेसिकली कि बाबा हर 2-3 घंटे में तेरा इतना काम हो जाना चाहिए, बेसिकली अलोकेशन ऑफ टास्क। सेकेंड वो रहेगा। और सबसे पहले तो टीम टीम जो बनेगी आपकी काफी वाइब मैच होने चाहिए। मैं तो ज्यादातर मेरे दोस्तों के साथ जाता हूँ हैकेथॉन में, ताकि वाइब बने रहे। आपके दोस्त ही है, मजा आता है काम करने में। जो भी टीम है आपकी, स्किल्स तो जरूरी है, सेकेंडरी है स्किल। स्किल से पहले ये देखो कि यार आपका जमना चाहिए वो लोग के साथ। अगर आपका जम रहा नहीं है, बोर हो रहा है, उसके साथ वाइब मैच नहीं हो रहा है, तो फिर बनाने में भी इतना मजा नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि काफी कूल टीम बना लो जिसके साथ आपको मजा आए काम करने में। दूसरी चीज है ये, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने के बाद इसको प्लान करो, फीचर्स लिस्ट डाउन करो। यहाँ पे तो देखो, यहाँ हाथ से लिखा हो पूरा रोड मैप दिख रहा है, और ब्रेनस्टॉर्म करो। तो थर्ड स्टेप तो ये। यस। ओके, तो बेसिक क्या रहता है इसके अंदर, व्हाट इज द बेसिक अप्रोच कि दैट दे मस्ट हैव इन माइंड कि हैकेथॉन्स में और क्या होता है, व्हाट लाइक आई वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम उत्कर्ष चौधरी, हाउ टू मैनेज टीम हाउ टू मैनेज टीम एक्सपेक्टेशंस, व्हाट द टीम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है। और इफ somebody doesn't have any team, he goes to hackathon, what is the environment over there? Got it. So, uh, so to get into a hackathon, first of all, you require a team, by the way. So वो लोग सेलेक्ट आजकल हैकाथॉन्स में काफी कंपटीशन बढ़ गया है, तो वो हर एक टीम मेंबर का पोर्टफोलियो देखते हैं कि कैसा है बंदा, उसका लिंक्डइन देखते हैं, उसने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, और उस बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। लाइक लास्ट हैकाथॉन आई रिमेम्बर देयर वाज ओवर 10,000 प्लस एप्लीकेंट्स। उसमें से उनको खाली 10, 15 या 30 टीम सेलेक्ट करने होते हैं। सो ट्राई टू फाइंड अ टीम, वो जो आपका कॉलेज के दोस्त भी हो सकते हैं। इतना बड़ा कॉलेज है, 4 लोग ढूंढ लो, 3 लोग ही ढूंढना है। नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन देखो। ऑनलाइन काफी सारे लोग हैकाथॉन्स के बारे में डालते हैं, जाना चाहते हैं। तो टीम बनाना काफी इम्पोर्टेंट है, और एक अच्छी टीम बनाना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर हैकाथॉन में जाने के लिए, हैकाथॉन में तो टीम कुछ कुछ हैकाथॉन में होता है कि वहां जाके आप कोलैब करके टीम बना सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ द हैकाथॉन सीन ऐसा है कि यू शुड हैव अ टीम एट द स्टार्ट इटसेल्फ। दे डोंट, आप सिंगल अप्लाई कर सकते हो, बट देयर इज अ वेरी लो चांस दैट यू विल गेट इन। सो फर्स्ट थिंग इज बेट योर फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत कोडिंग आ रहा है उनके साथ। सी व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे टीम में तो जो लोग थे उनको कोडिंग, उसके पीसी में पाइथन भी इंस्टॉल नहीं था। तो फर्स्ट हैकाथॉन में हम तो पाइथन इंस्टॉल करा रहे थे दूसरे के पीछे। सो एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो लेवल। डोंट थिंक कि भाई ये लोग तो सब आ गए ये है। तो स्टार्ट करना काफी इम्पोर्टेंट है। खाली सोचते रहना कब करूँ कैसे करूँ, वो फिर वैसे वही करते रह जाओगे। तो स्टार्ट करो। स्टार्ट करना काफी इम्पोर्टेंट है। किसी के साथ भी चले जाओ, बस चले जाओ हैकाथॉन। तो Okay. So there is a question: what exactly is a hackathon, and what should be prerequisite before taking part? So, like आपने जितना समझाया, what I have learned from your speech is कि hackathon is a like environment where they give you a certain type of questions, where they give you certain type of material. You have to हम्म build
build a solution that may be application, a web application, or anything that is related to coding, or any ideathon is also a part of a hackathon. Correct. So Correct. that is a hackathon. You go over Mm-hmm. there, get a question, produce an answer, produce a solution, and present to them in a last में presentation होता है, right? एक Correct. hackathon के last Presentation होता. presentation होता है, and based on the presentation and the marks awarded to you, get to know which position are you in hackathon. So Correct. what should be the prerequisite before taking part? बहुत सारे, So like, this is the main. I also have a doubt in this. What is a prerequisite? So I have learned some languages. Yeah, I am studying in CSE, so I have learned some languages from my class. I have got to know what is a hackathon. Now, what is like more I have to develop before getting into a hackathon? Like वहां पे जाके yeah. ऐसा नहीं हो वी आर खाली बैठे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कि ट्राई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बेसिकली 24 आवर्स में बनाना था, बस सीख के आ गए, बस पढ़ के आ गए. Mm-hmm. So if I were to start my, like, if I were to do the prerequisite thing before a hackathon, तो क्या मैं कैसे करता कि यार I would build a lot of projects. मैं काफी सारे projects बनाता था. Because in an hackathon you just have to build another project, right? Just another project. So learn to build a project from end to end. End to end in this, in you only do the front end, you only do the back end, you only do the API call, you only do the machine learning part of it, you only host it, everything, each and everything. So that will give you a edge. Even if your teammate doesn't know how to do the machine learning thing or do the front end, then you can help him doing it. So you don't rely on someone doing it a particular task, because you try to become a full stack one, not a niche one. भाई मुझे front end आता है, ये back end API REST API क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए. You should know somewhat of everything. I would suggest कि if you want to get into hackathon, to build a lot of projects. मतलब कचरे जैसे projects बनाओ. आपका हाथ बैठ गया प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, तो यार मैं तो बोलूंगा जाओ हैकेथॉन सीधा. थोड़ा बहुत आता है, प्रोजेक्ट बनाना भी आता है, तो भी जाओ आप, क्योंकि वहाँ पे आप कम से कम फ्रंट एंड बना पाओगे. जो आता है आपको वो तो बना पाओगे आप, जैसे फ्रंट एंड हो गया, थोड़ा सा बैक एंड सीख के वो भी. आप फिर जब हैकेथॉन जाओगे तभी तो सोचोगे अच्छा इसको ऐसे बनाना है, ऐसे करना है. और घर पे बैठे रहोगे तो फिर कुछ ना होना है फिर तो. सो प्रीरिक्विजिट इज ओनली वन थिंग, बिल्ड गुड प्रोजेक्ट्स. आपको लग रहा है एक दो प्रोजेक्ट्स अच्छे बन गए फुल स्टैक वाले, अब जाओ हैकेथॉन दिन भर. ऐसे ही नहीं है सब एकदम बड़े बड़े हैकर बैठे हैं, कोडर बैठे हैं हैकेथॉन, ऐसा नहीं होता. सब अपने जैसे लोग ही होते हैं. और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ऐसे खुद को कभी नीचे मत दिखाओ. आप क्या बताओ, आपसे भी मैंने तो जब स्टार्ट किया था मुझे तो यार लॉगिन पेज भी बनाने नहीं आ रहा था. तो गो टू हैकेथॉन, फंस जाओ. और प्रीरिक्विजिट यही है कि यार कोई भी एक टेक स्टैक उठा लो, मॉन उठा लो, पाइथन जांगो उठा लो. टेक स्टैक कभी मैटर नहीं करता है, कभी पूछो भी मत कौन सा टेक स्टैक करूँ क्या करूँ, बस करो, बस प्रोजेक्ट बनाओ. सो व्हेनेवर अ प्रोजेक्ट इज बिल्ट, ये कंपनी ये नहीं दिखती कि कौन सा टेक स्टैक यूज किया, कंपनी ये दिखती कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. तो Yes. डोंट थिंक अबाउट टेक स्टैक, डोंट वंडर ऑफ. यूट्यूब पे जाओ मत, कोर्सेस ये सब कि क्या टेक स्टैक करो. टेक स्टैक मैटर ही नहीं करता. बस बिल्ड कूल प्रोजेक्ट्स. कूल प्रोजेक्ट्स इन दिस, इन कॉपी कट क्लोन प्रोजेक्ट्स ये सब मत बना. ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो खुद फेस किया हो आपने, खुद आजू बाजू देख रहे हो. या कोई शार्क टैंक वाले का प्रोजेक्ट बनाओ जो एकदम फाड़ू है, एकदम वो प्रोडक्ट शार्क टैंक ही बन सकता, स्टार्टअप ही बन सकता है. ऐसे Yes. प्रोजेक्ट्स बनाओ. सही. So like एक और भी, what one doubt is also that what, like in going to a hackathon, basically if someone goes to a hackathon, what do they prior the most, मतलब उनको क्या चाहिए, what do, like some, if you have created a application that is similar to somebody else, so in that case what they do prefer in the hackathon, what the judges or what the authority over there, what do they prefer, they expect from you? So see,
In a hackathon, there are multiple problem statements, but there are a lot of people building the same thing. Like अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार से ज़्यादा problem statement होते नहीं. So let's assume कि if कम से कम 5-10 लोग हैं जो सेम बनाएंगे, so कम से कम 5 से 10 टीम रहेंगे जो सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रही रहेगी. तो उस केस में कैसे सिलेक्शन करते कैसे होता है? पहली बात तो 80 to 90% आपका पिच. ये वो लोग ये नहीं देखते कि आप बेसिकली ये लोग वो देखते हैं कि किस तरह आप पिच कर रहे हो. भले आप क्योंकि सामने वाले को तो आपको आपका खाली फ्रंट एंड ही दिख रहा है, एपीआई बैक एंड लॉजिक एआई एमएल ये सब तो दिखेगा नहीं. उसको बस आप किस तरह से किस ढंग से उसे प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है. तो whenever you pitch it, that is the only thing which sets you apart. So our pitch is something like a Shark Tank level pitch. Understand? You talk about the problem. Let's say if you are building a placement platform for engineering students, you talk about the problem of engineering students कि यार उसे skills भी develop करने हैं, उसे road map भी चाहिए, उसे projects भी बनाना है, उसे internship भी करना है, उसे jobs भी करना है, उसका hackathon. So talk about the problem statement of a engineering kid, for example. If you have a problem statement उसका, then उसको एग्जाम्पल के साथ दो कि यार कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं. सो बी रियलिस्टिक. डोंट जस्ट टॉक अबाउट फीचर्स. ये हमने एआई डाल दिया, चैटबॉट, ये हमने रोड मैप डाल दिया, ये हमने जॉब्स डाल दिए. गिव अ रीजन बिहाइंड इट कि जस्टिफाई करो वो फीचर को, वो सॉल्यूशन को प्रॉब्लम के साथ. गिव अ रियल लाइफ, वो रेजोनेट करो, ऐसे लिंक करो एग्जांपल दे दे के कि a lot of engineering students need a roadmap kind of thing. That's why we built a roadmap feature where you just enter a topic or something, it will give you a detailed roadmap out of it. So Okay. whenever you pitch it like a Shark Tank pitch. Talk about problems, then about solutions, and then this pitch is the only thing which sets you apart. So this is how we pitch it basically. We also try to include business model एक 5 सेकंड का कि कैसे बेचने वाले. So it also sets us apart. थोड़े थोड़े चीजें रहते हैं जो आपको स्टैंड Okay. आउट करते हैं, तो सामने वाला सोचेगा भी यार तो बिजनेस मॉडल भी सोच के रखा है. इफ इज अ स्टार्टअप, वरना So I टीचर या think रहेगी. yes, बिल्कुल सही कि मतलब if you have a great presentation, so they will basically prefer you over others that have made the same thing. Okay, so I think this gives an answer of Surya Pratap Singh. He asked the question that he makes really good products when compared into to others in a hackathon, but he didn't get selected. So what would be the possible reason? I think this is the possible reason that he might lack Yes, his pitch ability, or he is not able to present his product very well at that time. correct. Yep. Yeah. Uh, So there is one more question that we have arrived with. It is it like we should get a knowledge, like we should have a great knowledge about a coding language, we should have made more projects around it, and then we should go to a hackathon. It like she gave a analogy that uh, suppose you know swimming, so you will learn swimming if you are in a do or die situation, or when you have a Exactly. great skill, then you will participate in a competition. करेक्ट. तो यार ये काफी अच्छा एग्जांपल है कि आपको अगर हैकाथॉन में डाल नहीं देंगे तो तुम कुछ ना कुछ बना के ही आओगे ना. जैसे स्विमिंग पूल में डाल दिए तो स्विमिंग कुछ तो करके बाहर आओगे. सो दिस इज लाइक थोड़ा बहुत सीखो, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लो एक दो, एंड यू आर वेरी गुड टू गो टू हैकाथॉन. बिकॉज जितने अभी मैं हैकाथॉन सीखता हूँ, अगर मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता यार, सोचता रहता कि मैं नहीं यार पहले मैं स्किल्स बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, फाड़ू कोडर बन जाएगा, तब जाके हैकाथॉन बैठूंगा, तो फिर हैकाथॉन भी चला जाएगा, इंजीनियरिंग भी चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, घर पे ही बैठे. तो Yes. जस्ट गेट स्टार्टेड. तो इतना
वेट ना करो किसी चीज का। ना द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग वो अभी है। तो ये मत सोचते बैठो कि यार थोड़ा सीखता हूँ थोड़ा जाता हूँ। तो बस बिल्ड करो यार। तो प्री बिल्कुल। रिक्वेस्ट। यस दैट यस। आई मतलब मैं भी इससे करता हूँ। Yeah. So, what will be like? If you have any mind, like, आपके दिमाग में कुछ है कि what will be the next big thing? Like, if you get to a hackathon, what is the major part that you have to play a role? कि मतलब कैसे जीतना है वो? हम्म। तो पहले तो यार जब प्रोडक्ट बनाते हो ना तो फाड़ो प्रोडक्ट बनाओ। ऐसे नहीं कि यार ये चार चीज बोले चार चीज ही बनाए और चार चीज डालो उसके ऊपर। सो इट शुड बी साउंडिंग लाइक अ कंप्लीट प्रोडक्ट। बोलेगा भाई हमने तो चार ही चीज बोला लेकिन इसने और चार चीज डाल दिए। तो कम मेक इट एज अ कंप्लीट इकोसिस्टम कंप्लीट प्रोडक्ट। पूरा पूरा प्रोडक्ट बनाओ बेसिकली। पूरा प्रोडक्ट इंडस्ट्री अगर हैकेथॉन ने बोला खाली रोड मैप फीचर बना के दो तो रोड मैप के साथ साथ और भी चार चीजें डालो जो लिंक्ड हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बना रहे हो जो ऑलरेडी बना हुआ है दूसरे प्रोजेक्ट तो वही उठा के डाल दिए। ये ऐसे नहीं कि अगर समझो आ, एक अगर एक रोड मैप फीचर बनाने बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आना चाहिए। फिर एक कैलेंडर फीचर बना दो जहाँ पे वो रोड मैप वो कैलेंडर में फिट हो जाता है। गूगल कैलेंडर पे कैसे रिमाइंडर आते रहते हैं। तो Yes. ये एक चीज हो सकता है। तो वीकली रोड मैप बनाओ कि हर हफ्ते कैसे होने वाला है। एक ओवरव्यू बड़ा रोड मैप बनाओ कि ओवरव्यू कैसे होगा। तो Yes. बिल्ड अ होल प्रोडक्ट अराउंड इट। ऐसा नहीं कि दो चार चीजें बनाए उतना ही बोल दिया बस। Okay, so basically majority people का ये भी doubt रहता है. So can we get with the projects? For example, I want to get a code from GitHub. I copy that code. A feature is there for the face recognition feature is there. I get it on GitHub and then I paste it in my code so that like Ghetto stuff. ऐसा कर सकते हैं hackathons के अंदर and that will I think that will save much time. हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार। मतलब अभी ये जब तक आप कोड समझ पा रहे हो कर सब कर रहे हो तो कंप्लीटली फेयर है भाई। ओपन सोर्स कोड उठा रहे हो फीचर बनाने के लिए। ऐसा थोड़ी अगर तुम खुद सुनो तुम खुद अगर फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी कोड करोगे ना तो तुमको 2 साल जाएगा फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी कोड करने के लिए। बेसिकली जो भी पाइथन कोड है वो पीछे लाइब्रेरी यूज करता है जो सी में लिखा है। तो जो वो कोड भी है वो भी कहीं से इम्पोर्टेड हुआ है। तो बेसिकली जो पाइथन में इंपोर्ट लाइब्रेरी करते हो ना तो वो भी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ कोड है। तो तुम बेसिकली किसी और का कोड ही यूज कर रहे हो। So if so, all these libraries, pandas, numpy, these are written in C, C++ by top coders. So you are just using the well-written code to well-written code to solve your problem fast. जैसे अगर min max निकालना सॉर्ट करना है कुछ करना है numpy से तो Yeah, यार yeah. वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करके 1 सेकंड में कर पा रहे हो। सो इट्स कम्प्लीटली फेयर भाई। डोंट स्ट्रेस आउट कि ये नहीं वो नहीं। बस अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाओ और कोड कहीं से भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं। बस ओपन सोर्स रहना चाहिए। ये सब Okay. का टेंशन मत लो। ओके ओके सो मतलब बेसिकली ये रहता है एट द लास्ट आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के देना है. सो बस विनिंग लाइक कोई भी हैकाथॉन में मेन यही करना है कि अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बनाओ. पहले दिमाग लगाओ प्रोजेक्ट आया उसकी कोई प्रॉब्लम आया उस पर दिमाग लगाओ कि इसके अंदर क्या क्या और डाल सकते हैं व्हाट वी कैन ऐड एंड आफ्टर दैट कैसे भी करके कहीं से भी जुगाड़ लगा के यू हैव टू गेट मैनेज टू मेक अ बिल्ड इट फुल प्रोजेक्ट फुल दैट प्रोडक्ट। इज टू बी वर्किंग. यस एंड सी ठीक है. मैं जितने भी हैकाथॉन गया नो वन सॉ माय सिंगल लाइन ऑफ। एवरीवन सीज तूने क्या बनाया दिखाओ बस। क्योंकि यू गेट अ वेरी मिनिमल टाइम 5 मिनट कभी कभी 2-3 मिनट 10 मिनट to show your whole product. तो they only look at the front end तुमने क्या बनाया। no one looks at the back end you're working. You just have to pitch it ताकि वो नॉन टेक गाय को भी समझ में आए कि क्या बनाया है तुमने। तो don't ओके. worry about the back end side that much. Build good like अच्छा लॉजिक बनाओ कोड अच्छा करो लेकिन
मेजोरिटी सामने वाला खाली आपके फ्रंट एंड या जिस तरह आप पिच करने वाले वो ही याद रखता है, जैसे ये वाला प्लेसमेंट प्रेप वाला एक प्रोजेक्ट। सो जिस हाँ, तो जैसे रोड मैप हो गया, तो हमको हमको बोला था क्विज एनालिसिस करो, एग्जाम ले लो बच्चों का। तो व्हाट वी डिड वाज कंपाइलर भी डाल दिया ताकि कंपाइलर का जो आंसर आएगा वो मैच हुआ, तो बेसिकली लीड कोड टाइप एग्जाम। तो ऐसे और क्रिएटिव चीजें करो। और सबसे कूल चीज अभी क्या है कि आई पर्सनली गॉट many internships, many jobs just by winning a hackathon. So the last hackathon I won was a company level hackathon. It's a TIA करके company है, finance based, which is a US based $1 billion company. So a lot of people are hiring through just hackathon. So मैं उसमें भी आता हूँ। कैसे hackathons का लिए यार बड़ा सा चेक पकड़ा के फोटो डालने का लिंक्डइन पे उतना ही नहीं है, आपका लाइफ भी सेट कर सकता है हैकेथॉन्स। मेरे काफी दोस्त लोग हैं, जेपी मॉर्गन सुना होगा, बार्कलेस सुना होगा, मेरे बाकी टीम में Yes, yes. काफी प्लेस हो गए जस्ट बाय विनिंग अ हैकेथॉन। सो इट्स नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल डोंट वांट रटा रटा डीएसए नॉर्मल हायरिंग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो। पीपल वांट जो जगह पे 24 आवर्स में इतना अच्छा बना पा रहा है, तो यार वही तो मैटर करता है। अगर आपका खुद का स्टार्टअप हो, Hmm. आप ऐसे बंदे को थोड़ी चूज करोगे कि यार उसको खाली डीएस से आता है लेकिन आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। जैसे आपका प्रॉब्लम कुछ बनाना हो, मोबाइल ऐप या वेब ऐप, तो अगर 24 घंटे में कैसे भी बनाया लेकिन बनाया ठीक है, तो भी वो बंदे को पिक करोगे ना आप। सो So ट्रेंड चेंज। at the last, yes, yes. At the last, it is the mind. How well do you do with your mind? How do you prefer like pursue a problem, and how do you get a solution? At the last, like यही matter करता है. Uh, यही in मैटर करता आपने है। बताया, I have a like majority of us have a doubt that in after like we did the hackathon, we made a product, we have made a like ऐसा PPT दिखाना होता है या फिर पूरा as a project you have to show like working project. This is our front end, and you log in it. After that, you go inside, you do all of this. Like this is the main part, or you have to give in a whole project. Like कि I made this application, so I give the whole code of the application, and then they analyze it and give you like award you marks. Or is it like जैसा आपने पीपीटी दिखाया कि पीपीटी में you show them this is our like show all the profile pictures like you ऐसा पीपीटी का slides दिखाया आपने, so this is like stuff, this is our code, and this is what we have made in the front end, like ऐसा this is a basic idea. तो क्या तो रहता है प्रेजेंटेशन के अंदर? ऐसा होता है कि आ, हम लोग को क्या हाथ हो जाता है पीपीटी दिखाओ, बट मैं ना 5-10 सेकेंड से ज्यादा पीपीटी दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास काफी सारी चीजें होती है, टाइम लिमिटेड होता है, पीपीटी देख के किसी को मजा भी नहीं आता। तो हम डायरेक्ट डेमो पे जाते हैं। जैसे ये गेट स्टार्टेड का अगर थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन गेट स्टार्टेड पे दबाने के बाद गूगल साइन इन, तो आप बेसिकली पूरा फ्लो बताओगे आप उसको वेब एप्लीकेशन का पहले राउंड में, जहाँ पे उसे रेज्यूमे अपलोड कर रहा है, डेटा भर रहा है, फिर एग्जाम दे रहा है, एग्जाम के बाद उसको एनालिसिस कर रहा है कैसे कितना अच्छा आंसर किया है उसने। फिर ये बेसिकली पूरा एप्लीकेशन का फ्लो कैसे वर्क करने वाला है चीजें। ये नहीं कि पीपीटी पीपीटी यार ज्यादा से ज्यादा 5-10 सेकेंड, यार अगर कोई बोलता है जबरदस्ती दिखाओ तो ही दिखाना, वरना यार प्रोडक्ट डेमो पे ही जाओ सीधा। मैंने तो आज तक पीपीटी वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, खाली वर्किंग डेमो पे फोकस किया है। तो हाँ, पूरा प्रोडक्ट कैसे एंड टू स्टार्ट टू एंड कैसे वर्क करने वाला है वो देखो। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लॉगिन फॉर्म टू प्रोफाइल क्रिएशन, जॉब्स, फिर फीचर्स, फिर एआई, फिर एमएल, जो डालना है डालो और फिर दिखाओ। तो इस तरह से पूरा फ्लो होता है। और पिच एकदम सॉलिड रखो। सबसे बार बार वही रिपीट करते रहूंगा कि मेजोरिटी फैक्टर हमारा ये है कि हम पिच एकदम बढ़िया करते हैं। ओके, टीम सो लास्ट टीम में में ये रहता है, जिसको लास्ट में यही रहता है, वॉट एवर यू डेवलप इट यू शो देम वेरी नाइसली. ठीक है, इफ यू यस हैव लेफ्ट एनी डेवलपमेंट, मतलब ऐसा कुछ रह गया है, तो मैनेज इट सच अ वे, शो देम सच अ वे दैट इट इज हिडन. इज इट राइट? एकदम से। तो मतलब आप इन अगर आप 24 hours, yeah, it is basically 24 hours. In 24 hours
like इतना if ही you have बना a लो। you don't have a that हम्म, strong team, you will leave some stuff behind, and you can manage it by showing in a picture in a UI format. The PPT mein you can show them that this is the feature, and while showing it you can manage to like hide it somewhere. Is it correct? Like last see में see हमको बस वही see दिखाना the होता है. मुझे see the first thing I told is जब रोड मैप बनाओगे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो एक साइड रखो और एडिशनल फीचर्स एक साइड रखो। तो पहला काम तुम्हारा ये रहेगा कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है उसे बनाना ही है, फिर जाके एडिशनल फीचर्स बनाओगे। वरना आपका इतना बैड इंप्रेशन बनेगा कि भाई इसने साइड की चीजें बना दी है और जो मेन चीज है वो तो बना ही नहीं पाया। तो फर्स्ट स्टेप आफ्टर यू गेट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भाई उसका ही फीचर्स लिखो पहले जो उसमें लिखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, और खाली वो बनाओ। वो बनाने के बाद दूसरे पे जाओ। हम स्टार्टिंग के 4 घंटे वही बनाते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है, वो बनने के बाद बाकी पूरा प्रोडक्ट बनाने बैठेंगे। अगर तुम पूरा प्रोडक्ट बनाते रह जाओगे और कोर चीज, कोर हार्डवेयर, कोर ब्रेन ही नहीं रहेगा उसके अंदर, तो यार क्या फायदा। तो ये छुपाने वाली बात आनी नहीं चाहिए। तो जो क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है ना एडिशनल फीचर्स। एक्सपेक्टेड क्या है वो बनाओ पहले, फिर जाओ दूसरे Yes. फीचर्स। यस, ये है। Okay. So this was मतलब ऐसा था. तो आपने फिर मतलब हैकेथॉन्स के बारे में और कोई आपका एक्सपीरियंस, आपने कुछ हैकेथॉन के अंदर यू हैव गेन समथिंग? तो हैकाथॉन से यार कैसा होता है कि लक भी काफी इम्पोर्टेंट है यार। तुम 24 घंटे घिस रहे हो, सो नहीं रहे हो, सब हो गया, फिर भी हार गए। तो सब सही था, फिर भी हार जाते हैं लोग। मैं खुद आ रहा हूँ काफी बार। लेकिन वो सबको ना ऐसे नहीं यार, ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं। एक बंदा है जो हार के घर जाता है और सो जाता है, बोलता है अब से नहीं जाऊंगा हैकेथॉन, साले हरा देते हैं बार बार। और दूसरा बंदा होता है यार क्या यार मुझे बार बार हरा रहे हैं, अभी अगला हैकेथॉन देते मैं ही जीत के आता हूँ। तो वो वाला रखो यार, रिवेंज वाला। मतलब अगर आप फेल भी हो रहे हो तो बाउंस बैक वाला मोटिवेशन वाला चीज रखो कि यार हाला मेरे को हरा दिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं ही हराता हूँ उनको, रुको। तो वो वाला मोटिवेशन रखो। घर पे आके सोना मत यार, हार रहा हूँ बार बार, अब से हैकाथॉन जाना ही पड़। तो मैं भी इतना, अगर मैं ऐसे करता तो यार पहले हैकाथॉन मेरे को, पहला हैकाथॉन जीत के कितना 4 महीना हो गया, 4 महीने से मैं फिर एक भी हैकाथॉन हारा नहीं है। क्योंकि वो लक कह सकते हैं या पता नहीं क्या कह सकते हो, लेकिन मैं दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। तो लगातार 7 हैकाथॉन लाइन में जीते आ रहा हूँ मैं। और सबसे कूल वाला तो ये गूगल वाला हैकाथॉन है, जो आप कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो यार, नेशनल लेवल इंटरनेशनल स्टेज पर। तो वो भी काफी कूल, मजा आता है। तो जब इतना मेहनत करके वो जब चेक हाथ में आता है ये वाला, तो मजा आता है भाई। तो रुको, मैं मेरा पहला हैकाथॉन का दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ। मैं लिंक्डइन पे काफी डालता रहता हूँ, ये इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो जो भी है मेरा इंस्टा, लिंक्डइन को ही मैंने इंस्टा बना दिया। अच्छा, थोड़ा नेट नेट काफी स्लो चल रहा है मेरा, लेकिन हाँ ये थोड़ा फोटोज दिखा देता आपको तो थोड़ा मोटिवेशन और क्लैरिटी दोनों हो जाता है। ये एक्चुअली गूगल वाला है जहाँ पे मेरा नाम देखो इंडियन फ्लैग के साथ जुड़ा हुआ है। तो 28,000 टीम्स में से टॉप 50 टीम्स में सेलेक्ट हुआ, फिर जाके टॉप 10 में। और अभी वो एक हैकाथॉन हो गया, फिर ये रावत वाला हैकाथॉन हो गया जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिल गया डायरेक्ट। जहाँ जीता हैकाथॉन, अगले दिन वो फाउंडर ने अप्रोच किया और इंटर्नशिप लग गई। फिर ये जीडीएससी का इंटरनेशनल हैकाथॉन था, पहला इंटरनेशनल हैकाथॉन जहाँ पे थर्ड टीम शायद पोलैंड आई थी, सेकंड नेदरलैंड। तो वो भी काफी कूल लगा। हाँ, तो ये पहला हैकाथॉन जहाँ पे हम क्रेसेंडो स्टेट लेवल पे थे। फिर ये दूसरा विटनबर्ग का इंटरनेशनल लेवल। फिर हम गए हैदराबाद। हाँ, फिर ये हैदराबाद हैकाथॉन जीते हम। फिर ऐसे काफी सारे हैकाथॉन है भाई। तो अगर यही कह रहा हूँ कि हैकाथॉन में ना देख जेई जैसा होता है, सबका आईआईटी नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे हर बार जेई आते रह रहा है। मतलब हर हफ्ते में 1-2 बार जेई दे सकते हो, उस हिसाब से सोचो। ओके. तो ये मत सोचना कि हार गया घर पे ही बैठ गया।
जाओ और हैकेथॉन, क्या पता नेक्स्ट आपका ही हो। ठीक है। और ये भी देखना कि स्पॉन्सर्स कौन है। स्टार्टअप स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो अब ये बंदा है, इसके साथ ये ऑफिस में ही ज्वाइन हो गया मैं, तो ये बस ये हैकेथॉन देखे, ये पोस्ट देखो, नॉर्मल हायरिंग हैकेथॉन। तो कुछ इस या तरह से नाम भी काफी बनता है। तो भी देखना कौन है स्पॉन्सर और उस हिसाब से बिल्ड कर। या सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से हैकाथॉन, मतलब कहाँ जाके वी शुड पार्टिसिपेट? मतलब हैकाथॉन में बेसिकली अगर कोई कॉलेज में है जिसका हैकाथॉन ऑफनली नहीं होता है, ठीक है, तो ठीक है। वो कहाँ से, वेयर ही शुड गो एंड गो, लाइक डू हैकाथॉन्स एंड पार्टिसिपेट इन देम? सी फर्स्ट स्टेप इज यार कॉलेज के ग्रुप से देखो। व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी सारे हैकाथॉन्स आते हैं, नहीं आ रहे तो यार जाओ, डेवफोलियो करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे हैकाथॉन्स काफी मिल जाते हैं। तो या तो अनस्टॉप पे जाओ, अनस्टॉप पे भी मिलते हैं। अभी हम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे सारे हैकाथॉन्स मिल रहे हैं, क्वाड लेवल करके हम बना रहे हैं। मेरा खुद का ही प्रोजेक्ट आइडिया है जहाँ पे हम वो कर रहे हैं। तो हाँ, अनस्टॉप हो गया, डबफोलियो हो गया, यहाँ पे मिल जाते हैं यार काफी। अगर नहीं भी मिल रहा है यार तो हैकाथॉन्स नियम निकाल दो, जो उसपे आ ही जाएंगे उसमें सारे। तो ये बड़ा मसला नहीं है हैकाथॉन का। आप ढूंढने वाला ढूंढ लेता है कैसे भी, लेकिन डबफोलियो, अनस्टॉप, ये सारे प्लेटफॉर्म है available जहाँ पे है। और आप सबसे गॉड लेवल का बात ही किया हो तो एक हैकाथॉन का सबसे दिक्कत बताता हूँ कि जब आप हैकाथॉन जाते हो या जीतते हो तो काफी हद तक जीतने वाले को भी कुछ मिलता नहीं है कैश प्राइस के सिवाय। तो हम ऐसा एक जरिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे हैकेथॉन से आपका जॉब या इंटर्नशिप डायरेक्ट लग जाए, या आप हैकेथॉन जीतो या टॉप में आ जाओ और आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप या जॉब लग जाए। तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल कि इसका इसका दो एडवांटेज होता है कि यार कंपनीज को कैसे कि तुरंत, स्टार्टअप्स को कैसे तुरंत बनाने वाले लोग चाहिए। मतलब अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, 24 घंटे में बना दिया, हो गया, सीधा हायर कर लेते हैं। तो कंपनीज का भी फायदा है, बच्चों का भी फायदा है कि आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हो यार, आपका कोड मतलब रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट करेगा अगर यूज होगा तो ये कुछ अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा हूँ। मैं लिंक्डइन पे काफी डालता रहता हूँ, अगर इंटरेस्टिंग लगे तो जाके देख लेना वहाँ पे। यस, बिल्कुल। तो यार अच्छा था, और इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर। और बाकी तो यार आयुष आयुष तो मैंने देखा यार, काफी टच में रहता हूँ इनसे। जो वो लोग काम कर रहे हैं काफी कूल और इंस्पायरिंग लगा, इसलिए मैं आया बाय द वे कि आयुष का काम देख के एकदम अपडेट्स कम्युनिटी के लिए काफी कुछ कर रहे हैं यार। देखा जाएगा तो फ्री में, मतलब बिना कोई चीज के, मतलब एक्सपेक्टेशन के कर रहे हैं। तो काफी कूल लगा मुझे, इसलिए मैं खुद आया, चलो यार आ जाता हूँ। और यस, बाकी ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ, मैच मैच भी चल रहा होगा, सब बिजी रहेंगे, मतलब मैच के दिन देखने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो रियली यार इट आर्यन, वाज अ थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। पता है हमें, ये टाइम कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल है। एक तरफ मैच चल रहा है जहाँ ऑलरेडी 3 विकेट्स हो चुके हैं, और एक देख तरफ भी रहे तुम्हारा सेशन चल रहा है। हैं। तो बहुत हॉट एनवायरनमेंट चल रहा है भाई। आर्यन रियली रियली ये आज का जो सेशन था वो मतलब काफी इंसाइटफुल था हमारे लिए, और मोटिवेशनल भी था हमारे लिए। इंसाइटफुल मोटिवेशनल आप बोल सकते हो। मतलब आपकी स्टोरी को देख के आप लगातार आप हैकाथॉन्स जीतते आ रहे हो और आप फर्स्ट ईयर से ही काम कर रहे हो। ये एक बहुत अच्छा चीज हो सकता है लोगों को मतलब समझने के लिए कि हमें कितना जल्दी स्टार्ट, जितना जल्दी से जल्दी उसे स्टार्ट करना चाहिए। तो हम्म। काफी अच्छा लगा मतलब हाउ वी शुड, मतलब कैसे हाउ वी शुड स्टार्ट। सर अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके, इट वाज अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। ठीक है, आगे और वी होप आगे और आप, इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन मेक मोर इवेंट्स, वी कैन हेल्प टेक मोर ऑफ योर टाइम। हम्म, जरूर जरूर, काफी एक्साइटेड होऊंगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज वर्ल्ड कप है, अपना वर्ल्ड कप का फाइनल है, और मतलब हमारे पास फिर अराउंड भी हंड्रेड आए लोग। हंड्रेड प्लस यस। रजिस्ट्रेशन आए थे, पर फिर भी लोगों ने इसको मतलब अवॉइड नहीं किया इस सेशन को। काफी ये काफी अच्छा चीज रहा है ये आज का।
हाँ यार, Yeah, वो अब तो लास्ट सही। तक till the last So it is कहना 30 pieces. 1 सेकंड कहना गलत नहीं होगा, आर्यन वर्सेस इंडिया था आज। अरे 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 अब मैं भी जाऊंगा मैच देखने। करेक्ट, सब इंतजार कर रहे हैं उस पर का। और जो चलो, it डाउट है was a यार, great session. Yeah. और जो भी डाउट्स है यार मुझे डीएम कर दो, मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का लिंक्डइन पे। तो सारे है देखे नहीं है। Yeah, most of the doubts I have मतलब पूछ लिए ज़्यादा देख के कि सही क्या है क्या सही रहता है. है। And I had a special all the inside and community members they also presented some sort of doubts. So वो भी मैंने आपसे पूछे खूब सारे. सही है। कूल यार, मजा आया। आयुष, आर्यन, सूर्यांश, मजा आ गया बात करके। So, okay. Next भाई time के किसी लिए का चल we will once again prepare. ठीक है. giving a valuable time. चलेगा, सोच श्योर श्योर Okay. चलेगा। ठीक है फिर बस, बाय बाय। थैंक यू गाइस। फॉर इनवाइटिंग मी। ओके ओके। आई जस्ट 1 मिनट। अगर किसी हाँ का हाँ कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, माइक अनम्यूट करके हाँ, आप माइक डायरेक्टली ऑन बात कर सकते अनम्यूट हो, करके पूछ। बिकॉज दिस सेशन इज जस्ट ओनली फॉर यू गाइस। और क्वेश्चंस भी काफी अपने पास आए थे चैट्स में, तो काफी इंटरेक्टिव रहा किसी को अपना डाउट है तो पूछ लो भाई, टेंशन Am I audible? नहीं। यस यस, यू आर। So Aryan, I'm following you currently in LinkedIn, and I have seen your build space project. So how much have you completed? How much have you completed for that? So right now, we are building God level. So till now, what we are doing is we are reaching out to startups, we are reaching out to companies over there. So not building is done in terms of reaching out to people, not in tech wise, because यहाँ पे इतना tech impact करता नहीं है. So we are reaching out to Paytm, we are reaching out to many big companies and startups. We are in talks with Paytm right now, where we are planning to launch an hackathon with Paytm right now. So yeah, प्रोग्रेस हो रहा है, जो दिख नहीं रहा है, लेकिन बैक ऑफ द बैकएंड पे काफी कुछ चीजें चल रहे हैं। सो टेक, अगर ये टेक प्रोजेक्ट होता तो काफी सॉफ्टवेयर अपडेट्स रहते थे, लेकिन ये टेक नहीं है, ये एज अ मतलब कंपनी के साथ कोलैब करना, लोगों एंगेजमेंट लाना, कम्युनिटी बनाना, वो ज्यादा देख रहा हूँ। इसलिए बिल स्पेस तो एक जरिया है बस स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए, लगे हैं हम भी। तो अभी तक कंपनीज के साथ टच में जा रहे हैं, बस इतना प्रोग्रेस है, और बाकी प्रोग्रेस डालते रहेंगे आपके लिए पेज पे। Okay. Anyone else? और कोई डाउट्स है कि सब गए मैसेज? If you want, you can ask your doubts. Yeah, switch on your mic and ask your doubts. What is जो भी आता है आपके दिमाग में. आई थिंक सब Okay कुछ then. कवर कर दिया गया हम लोगों ने। I think now we should लास्ट end this meeting. यस, लास्टली हम यही कहेंगे, आर्यन आपको मतलब lots of thank you to you for joining our community session. This is just community session. We are not getting any sponsorship or anything. We are just doing for our community members, and we are trying to help our members as possible as. So so we really appreciate you take your time and joining us. So thank you. यस यस ब्रो, थैंक्स। चलेगा, कीप डूइंग व्हाटएवर यू डूइंग, इट्स वेरी कूल। लाइक मजा आ रहा है आप लोगों को काम करते हुए देखते, बनाते रहो, और जब भी कुछ लगे तो बता देना, आ जाऊंगा। बिल्कुल। Sure will. चलो देन, बाय आयुष, सूर्यांश, आर्यन। Bye चलो, everyone. थैंक यू सो मच। चलो Okay, बाय। bye. Bye.